ముందుకు పోతామనే మనం మెట్ల కాలం I came for the wedding. I was looking for you, but you are busy. Some of this year. Sir, you are the. I met her in the wedding. Sir, 1 second. Sir. Ma'am. Madam. Sir, welcome to your institution. Sir. और बढ़ता रहेगा। जब दीन इस्लाम की ये मकाम और फजीलत हासिल है तो वो शरीयत जिस जुबान पे नाज़िल हुई, जिस जुबान पे उसके अहकाम, उसके उसूल, उसके अकायद और अखलाक महफूज किए गए, वो जुबान के गैर
आज अरबी आज वो प्रोग्राम है, आप लोगों को उसके अंदर बुलाने का मकसद ये था और हमारे डीजी वेंकटेश साहब आज जो है हमारे डीजी वेंकटेश साहब जो है ये प्रोग्राम को जो है मेहमान उपस्थिति के हैसियत से आए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ डीजी वेंकटेश साहब से कि वो स्टेज पर डायस पर तशरीफ लाएं। और मैं सैयद एजाज अहमद साहब से तशरीफ गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं सर। और मैं दादा वाले साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। उमर नाज़िर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर तौहीर रजा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं सर। आइए सर, आप इस पर आइए। मैं अब जो है गुजारिश करता हूँ हमारे सैयद खाजा मोइनुद्दीन साहब से जो अरबी के ताल्लुक से डीजी वेंकटेश साहब को थोड़ा सा सुनाएंगे क्या है ये अरबी क्या है बोलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अगरचे कि मुझे उर्दू में भी बोलना है, उर्दू के बाद हमारे स्कॉलर्स आने के बाद అయితే మన ముఖ్య అతిథి చీఫ్ గెస్ట్గా అరబిక్ లాంగ్వేజ్ గురించి ఎన్నెన్నో సేవలు అందించి మన కర్నూలు వాళ్లకు మన్నించిన మన ముఖ్య అతిథి గౌరవ శ్రీ టీజీ వెంకటేష్ గారు వచ్చినందువల్ల కొన్ని విషయాలు మీ అనుమతి తెలుగులోనే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. మీకు తెలుసో తెలియదు, సార్ 30 ఇయర్స్ నుంచి పాలిటిక్స్లో ఉన్నారు. సార్ మినిస్టర్గా కూడా, రాజ్యసభ మెంబర్గా కూడా, పాలిటిక్స్లో రాకముందు కూడా సమాజ సేవ చేసి అందులో ఎవరు ఏం అడిగినా కానీ లేదు కాదు అని చెప్పకుండా ప్రతి ఒక్క విషయంలో మన కర్నూలు వాళ్లకు ఎన్నెన్నో విషయాలు తెలిపించాడు, చూపించాడు, చూయించాడు. ముఖ్యంగా మన పిల్లలు ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలామంది గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ ఫర్ మైనారిటీస్ గడియాల మాస్పత్రి దగ్గర ఉన్న కాలేజ్, తర్వాత వచ్చే చాలా కాలేజ్, బృందాలలో కూడా వచ్చింది ఉర్దూ మీడియం జూనియర్ కాలేజ్, ప్రొద్దుటూరులో కూడా వచ్చింది జూనియర్ కాలేజ్, వేరే చోట్ల తర్వాత వచ్చాయి. సార్ వల్ల, సార్ శ్రమ వల్ల, సారు మనకు ఎంతో ప్రేమ వల్ల గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ ఫర్ గర్ల్స్ అని ప్రత్యేకంగా గడియా మాస్టర్ దగ్గర తన సొంత డబ్బుతో ఖర్చు పెట్టి బిల్డింగ్ తయారు చేసి ఒక జూనియర్ కాలేజ్ కూడా అందించారు. అందులో ఒక పోస్ట్, అరబిక్ పోస్ట్ కూడా శాంక్షన్ చేయించి డాక్టర్ రజియా సుల్తానా ఇప్పుడు అక్కడ లెక్చరర్గా చేస్తున్నారు. సార్ మీరు ప్రత్యేకంగా అరబిక్ గురించి ఇంటర్మీడియట్లో అరబిక్ చదువుకోవడానికి పిల్లలకు సౌకర్యం కల్పించాలని మేము మీ దగ్గరికి వచ్చి మీతో అడిగినప్పుడు మీరు అనుమతించారు. ఆ అరబిక్ ఎడిటోరియల్ బోర్డులో ఉస్మానియా కాలేజ్ లెక్చరర్ లతీఫ్ బాషా సాహెబ్ గారు, తర్వాత నేను కూడా
దాంట్లో ఎడిటోరియల్ బోర్డులో ఉండి ప్రత్యేకంగా అరబిక్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కోసం టెక్స్ట్ బుక్ తయారు చేయడంలో మేము కూడా పాలు పంచుకున్నాము. ఇదంతా మీరు మాకు అందించిన గౌరవ సేవలు మేము ఎల్లప్పటికీ గౌరవ టీజీ వెంకటేష్ గారు మేము ఎప్పుడూ మరవం, కర్నూలు మేము ఎప్పటికీ మరవలేదు. అలాగే ఈరోజు అరబిక్ డే జరుపుకుంటున్నాము. 1973 నుంచి ప్రత్యేకంగా యుఎన్ఓలో అరబిక్ భాషను జోడించారు. ఇదివరకు 3 భాషలే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 6 భాషలలో అక్వామే ముత్తహిదా యునెస్కోలో అరబిక్ భాష ఇప్పుడు 3rd పొజిషన్లో వచ్చింది సార్. అందువల్ల వాళ్ళు చెప్పింది ఏమంటే 18వ తేదీ డిసెంబర్లో అరబిక్ డేగా మొత్తం ప్రపంచంలోకెల్లా అరబిక్ డేగా నడపాలి అని యునెస్కో చెప్పినందువల్లనే లాభపడుతున్నారు. ఆ విషయాలు చెప్పడానికే ఈరోజు సార్ అరబిక్ డే మేము నడుపుకుంటున్నాము. ఇక్కడ కూడా మొత్తం ప్రపంచంలో ఈరోజు అరబిక్ భాష అరబిక్ డేగా సార్ నడుపుకుంటున్నాము. మనము మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు అరబిక్ సౌకర్యాలన్నీ తెలంగాణలో ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయినాయి సార్. ముఖ్యంగా 2 విషయాలు మీకు మీ ముందర నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. ఒకటి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓరియంటల్ మ్యానుస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్లో ఉంది సార్. అప్పుడు మనము మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాము కనుక నేను అక్కడనే 6.5 years చాలా రీసెర్చ్ ఆఫీసర్ అరబిక్గా పనిచేసి ఇక్కడికి వచ్చాను సార్. అక్కడ వ్రాత పత్రులు మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి సార్. అరబిక్ భాషలో 6,000, పర్షియన్ భాషలో 8,000, ఉర్దూ భాషలో 2,000, సంస్కృతంలో 4,000, తెలుగులో 2,000, హిందీలో 2,000, మొత్తం 24,000 వ్రాత ప్రతులు తాటాకుల మీద రామాయణము, మహాభారతము, విష్ణు మహాపురాణము ఇలా సంస్కృతంలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి సార్. మన విభజన జరిగినప్పుడు సార్ చాలా విషయాలు వరకు విభజన అయిపోయింది. అయితే 52-48 ప్రకారం ఈ మ్యానుస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ అక్కడనే ఉండిపోయింది సార్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓరియంటల్ మ్యానుస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ప్రత్యేకంగా మీరు మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక కొత్త బిల్డింగ్ కట్టడానికి 80 లక్షలు మంజూరు చేసి అక్కడ హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కొత్త బిల్డింగ్ కూడా కట్టారు. అక్కడ మ్యానుస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ ఉంది ఇప్పటికి కూడా. అది విభజించి ఇక్కడికి రాలేకపోయింది సార్. అప్పుడు మేము ఎంతో ప్రయత్నించాము. ఆ ఫస్ట్ టర్మ్లో కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారితో మన అల్మేవా వారిని చెప్తే వాళ్ళు పోయి కలిశారు, చెప్పారు ప్రయత్నించడానికి. అయితే మళ్ళీ 5 years రావడం వల్ల ఆ ఫైల్ అక్కడనే ఆగిపోయింది సార్. ఆ ఓరియంటల్ మ్యానుస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీ యొక్క విభాగం మన ఆంధ్రదేశంలో కూడా ఇక్కడ వస్తే గుంటూరైనా పర్వాలేదు, కర్నూలు కూడా చాలా ఉర్దూ, అరబిక్, పర్షియన్ చదివేవాళ్ళు, తర్వాత సంస్కృత్ చదివేవాళ్ళు, హిందీ, తర్వాత తెలుగులో కూడా మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఇక్కడ వస్తే అరబిక్ భాష గురించి ఇక్కడ కూడా ఎంతో మనము లాభపడడానికి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి సార్. అరబిక్ చాలా మంది అనుకుంటారు అరబిక్ ఖురాన్ భాష, హదీస్ రిలేటెడ్ భాష ఇది ఉంది సార్. అయినప్పటికీ ఈ కాలంలో ఒక ఇంజనీర్ ఉన్నాడు, ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు, ఒక ఆడిటర్ ఉన్నాడు, ఒక లాయర్ ఉన్నాడు. అతను చేసే సేవలు అరబిక్ కూడా అతనికి వస్తే ఏదైతే అతను దీనివల్ల సాలరీ పొందుతున్నాడో సాఫ్ట్వేర్లో ఇప్పుడు అరబిక్ వల్ల ఒక 50,000 అతనికి ఎక్కువ వస్తాయి సార్. 1.5 lakh పర్మనెంట్ తీసుకుంటాడు. అయితే అరబిక్ రావడం వల్ల అతనికి 2 lakhs రావు సార్. నేను హైదరాబాద్లో కూడా చూశాను. అరబిక్ భాష కేవలం ముస్లింల భాష కాదు సార్. అరబిక్ భాషలో ఇతర మతాల వాళ్ళు కూడా ఎంతో ప్రేమతో చదువుకొని దాంట్లో నాలెడ్జ్ పెంచుకొని ఎంతో పెద్ద ఉద్యోగాలలో ఇప్పుడు అరబిక్ వచ్చినందువల్ల వాళ్ళు లాభపడుతున్నారు సార్. ప్రత్యేకంగా ఈ టెక్నాలజీ పీరియడ్లో, సాఫ్ట్వేర్ పీరియడ్లో బీకామ్ కంప్యూటర్, బీఎస్సీ కంప్యూటర్ చదివిన వాళ్ళు అరబిక్ కూడా చదివినందువల్ల వాళ్ళకు ఎంతో పెద్ద ఉద్యోగాలు, ఎంతో పెద్ద సాలరీ కూడా వస్తుంది సార్. నేను ఇక్కడ నుంచి ఇస్లామియా అరబీ కాలేజ్లో 25 years చేశాను.
గవర్నమెంట్ వల్ల నేను అబ్జర్వ్ అయ్యి గవర్నమెంట్లో పోతే కేజీఆర్ ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాను సార్. అక్కడ ముస్లింలే కాకుండా ఇతర అమ్మాయిలు కూడా మా దగ్గర చదువుకుంటున్నారు సార్. శిరీష ఒక అమ్మాయి చదువుకుంది, బీకామ్ కంప్యూటరు. ఆమె అరబిక్ చదువుకున్నందువల్ల హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు 35,000 పర్ మంత్ ఆమె తీసుకుంటుంది. ఇది ప్రజెంట్ సార్. అరబిక్ చదువుకున్నందువల్ల ఇతర మతాల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు కూడా ఎంతో లాభం వస్తుంది సార్. అరబిక్ భాష కేవలం ఖురాన్ భాష ఉండొచ్చు, అయినప్పటికీ అరబిక్ వచ్చిన వారికి ఏ ఉద్యోగంలోనైనా ఎంతో పెద్ద పెద్ద వాళ్లకు హోదాలు వస్తున్నాయి సార్. అరబిక్ భాష అన్ని భాషలతో కలిసి ఉంది సార్. ఈవెన్ మన తెలుగు భాషలో కూడా అరబిక్ పదాలు చాలా చాలా వరకు కూడా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం సార్. ఎందుకంటే ఒక 100 సంవత్సరాల ముందు అరబులో వాళ్ళు చాలా పేదవాళ్ళు సార్. ముఖ్యంగా మన దేశానికి వచ్చారు బ్రతకడానికి. హైదరాబాద్లో అయితే బార్కస్ అని వాళ్ళ ఒక ఏరియానే ఉంది. వాళ్ళకు తిండి తినలేక ఉండలేక తిండి ఇల్లు తిండి లేనందువల్ల ఇక్కడ మన దేశానికి వచ్చినందువల్ల వాళ్ళు ఎక్కడైతే వచ్చారో మన భాష మీద కూడా అరబిక్ భాష పదాలు ఎన్నో వచ్చాయి సార్. మామూలు అనే వర్డ్ అరబిక్ సార్. మంజూరు చేయగలరు, మంజూరు అనే పదము అరబిక్ వర్డ్ సార్. ఇదివరకు మా ఒక స్కాలర్ ఇప్పుడే చెప్పాడు సార్, చాలా పదాలు తెలుగులో కూడా అరబిక్ వచ్చాయని. అలా అరబిక్ భాష అందరినీ కలుపుకొని బ్రతికే భాష సార్. ఈ అరబిక్ భాష మన దగ్గర మేమిద్దరం ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో ఉన్నాం సార్, అరబిక్ ప్రొఫెసర్స్గా. మన కర్నూలులో 12,000 మంది పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్లో అరబిక్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా చదువుకుంటున్నారు. అక్కడ 12,000 మందిలో కేవలం ముస్లిమ్సే కాదు సార్, ఇతరులు కూడా ఆ భాషలో సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా చదువుకుంటున్నారు సార్. అందువల్ల 10 మంది లెక్చరర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాం సార్ కర్నూలులో. అరబిక్లో కూడా అరబిక్ జూనియర్ లెక్చరర్గా, డిగ్రీ లెక్చరర్ అయితే ఉన్నాము. మాట్లాడటం ఇద్దరు వస్తారు. అరబిక్ జూనియర్ లెక్చరర్గా ఇప్పుడు నజియా సుల్తానా మేడం గారు ఇక్కడ కూర్చున్నారు. మీరు తెచ్చిన కాలేజీలో ఆమె బోధిస్తున్నారు. ఆ ఒక్క కాలేజీలే కాకుండా కేవీఆర్ కాలేజీలో కూడా చాలామంది ముస్లిం అమ్మాయిలు చదువుకుంటారు. అక్కడ ఒక అరబిక్ కోర్సు, తర్వాత పార్లమెంట్ కాలేజ్ డిగ్రీలో కూడా ఒక కోర్సు. కేవీఆర్లో ఆల్రెడీ మేము ఇద్దరం ఉన్నాము. ఎక్కడెక్కడైతే జూనియర్ కాలేజెస్ ఉన్నాయో దయచేసి మీరు దయ ఉంచి మన మంత్రి గారికి మీరు సుపుత్రుడు కనుక మన టీజీ భరత్ గారికి మెరుగుపరి చెప్పి మన హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారు మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారి కుమారుడు ఉన్నందువల్ల ఈ జూనియర్ కాలేజెస్లో అరబిక్ ఒకవేళ వచ్చేస్తే ఈ 12,000 మంది ఇంకా మంచిగా రెగ్యులర్ లెక్చరర్తో వాళ్ళు చదువుకుని వాళ్ళ జీవితం మంచిగా చేసుకుంటారు సార్. ఈరోజు మీరు వచ్చినందువల్ల మేము ఎంతో 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 మీకు కృతజ్ఞతలై ఉంటాము సార్, రుణపడి ఉంటాము. మీరు అరబిక్ భాష గురించి, అరబిక్ వాళ్ళ గురించి ఎప్పుడు ఎంతో మాకు సేవలు అందించారు, ఎంతో మాకు మేలు చేశారు. మీ మేలు, మీ సేవలు అరబిక్ వాళ్ళు ఎప్పుడు మరవలేరు సార్. మీకు ఎంతో నా హృదయాలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను టీవీ టైమ్స్ గారి వారికి ఛాన్స్ పెట్టుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ. मैं कदूर के ज्वाइंट कलेक्टर जनाब नूरुल अहमद साहब को गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाए सर। डॉक्टर सैयद समीउद्दीन मुजम्मिल साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आपसे कुछ मुखातिब हो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dignitaries on dais and off the dais. Assalamu alaikum. Good morning. We have indeed a galaxy of luminaries adorning the dais today in the historic Usmania College. Today, being the World Arabic Day and the National Minorities Rights Day, the program, I must say, a wonderful program, has been organized by the Peer Times under the guidance of Syed Mahmood Peer in this historic high hall of Usmania College. We have today here C.T.G. Venkatesh Garu. About sir, I would like to say that he is a princely merchant, a noble philanthropist, an orphan's benefactor, a poor man's friend, and he is a total gentleman. Gentlemen are rarely found in politics, but here I can also say that T.G. Venkatesh Sahab, the initials T.G. stand for a true gentleman, that which he is. He has always been in the forefront, helping the minorities. Every cause, every move, every turn, every step, every instance, every moment, he has helped the minorities. He has worked for the upliftment and development of the minorities. Sir, today being the National Minorities Rights Day, I would like to tell here, among all of you, that I remember an incident. It was in the month of Ramadan a few years back. A little girl, her modesty was violated. She was abused. A little girl, 5-6 years old, minority, Muslim girl. And she was lying in the hospital, general hospital. I remember even to this day, and I have this goosebumps when I recall that T.G. Venkatesh Sir was the first person who visited that little girl in the hospital and announced 1 lakh rupees as medical assistance. As I said, I can quote a number of examples of his generosity. What more can I say? That in the field of education, he has always been helpful, especially towards minorities. If we have the Dr. Abdul Haq Urdu University, which is named after our founder, Janab Abdul Haq Sahab, it is thanks to T.G. Venkatesh Sahab and the government of that day, the Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Sahab and the Deputy Chief Minister T. Krishnamurthy Sahab, that we have that Urdu University today. The biggest gift of T.G. Venkatesh Sahab to Kurnool, can anyone tell me what it is? The biggest gift from T.G. Venkatesh Sahab to Kurnool. I have got the answer. It is T.G. Bharat. His son, worthy son, illustrious son, a chip of the old block, like father, like son. We are very fortunate that T.G. Bharat Sahab was a student of this institution. He graduated from the portals of this institution. He was our student. And today, he is the Minister for Industries. He is a great upcoming leader who is leading from the forefront and who is leaving no stone unturned for the development of Kurnool. This is, I think, a great gift from T.G. Venkatesh Sahab to Kurnool in the form of T.G. Bharat. And let me tell you that it is very commendable, it is very appreciable that T.G. Bharat has sanctioned 1 crore rupees as a grant for Dr. Abdul Haq Urdu University. For this university, which is named after the founder of his alma mater, he has sanctioned 1 crore rupees from his personal funds. This deserves a big round of applause. Thank you, sir. Thank you for always being there for us. We have got the young Joint Collector Sahab here.
He had come to our college as a trainee. Then itself we had reached him success in every walk of life, and now we are indeed fortunate to have him as a joint director of Kurnool. Thank you, sir. Thank you for blessing this occasion. We have Faqir Alam Sahab, who is the southern head of NCPUL, and we have got Janab, the legendary figure from Karnataka, who is there at the help of affairs in training IAS and IPS officers. We request you to help us achieve this goal in Kurnool, sir. We look forward to your speech, wherein you will enlighten us about how to go about, and you will literally give us the roadmap for the upliftment of our students, young students of Kurnool. So, thank you, Mahmood Pir. We have got other dignitaries also on the dais. We have got Hamid Sahab, we have got Khaja Muhyiddin Sahab, the principal of our Islamic Arabic College, and all the dignitaries for all the seat of the dais. Thank you for blessing this occasion. And I thank Mahmood Pir from the bottom of my heart for having organized a wonderful function. Thank you very much. अब मैं आप लोगों से आपको वो बताना चाहता हूँ कि जो है जनाब पीजी वेंकटेश साहब जो है आपसे मुखातिब करते हैं। मैं आपसे लोगों से उनका बयान को जो है ये करें। उर्दू यूनिवर्सिटी को लाने में हमारा सबसे बड़ा हाथ हमारे जनाब पीजी वेंकटेश साहब का है, और करनूल में जो गवर्नमेंट उर्दू जूनियर कॉलेज है वो लाने में भी जो है पीजी वेंकटेश साहब का हाथ है। आज करनूल के अंदर उर्दू अगर जिंदा है, अगर कुछ कॉलेज के इंस्टीट्यूशन चल रहे हो तो वो पीजी वेंकटेश साहब के जरिए से ही आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप यूथ है। क्योंकि जब हम लोग यूथ थे तो उनका सर्विसेज देते थे, अभी जो है पूरे बिल्डिंग्स बन गए। करनूल के अंदर अगर उर्दू अगर बंदा है, अगर कुछ बाकी है बोले तो पीजी वेंकटेश साहब जो मेहनत करें वो आज जो है आज हम उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं। मैं पीजी वेंकटेश साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आपसे मुखातिब करें। आज वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे है, नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे ऑल्सो। आज दो भी है, दो भी एक ही साथ कॉन्फ्रेंस इधर कर रहे हैं। थैंक फॉर दी मोहम्मद पीर साहब, दो भी लीड लिया है, सबका साथ करको सबको मिला को ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको धन्यवाद। आज कॉन्फ्रेंस को नूरुल साहब आया, जॉइंट डायरेक्टर है करनूल का। सब आंध्र में करनूल कॉन्स्टिट्यूंसी मैक्सिमम नंबर लोग इधर सब क्या पता, नो कैपिटल इशूज, नो कैपिटल प्रॉब्लम्स, ओनली इलेक्शन है वो वोट नहीं no issues. Everybody, we are living like a brother and sister. This is the specialty of this Kurnool sir. From day one, we are living with them. हमारे दोस्त साहब, डॉक्टर साहब, भाई साहब भी था, हमारे साथ है। अब एक नवा फैमिली था इधर Alafkan, they were the rulers of this age. हमारे डायरेक्टर का बिहार से आए, मगर बहुत अच्छा में साल चलता है। Any town has to develop, any place has to develop. एक IAS officer, एक politician, leader, दो जने आगे सकता देश को, दो जने अच्छा काम करे तो देश सौभाग्य रहेगा। दो जने फुल स्टॉप कमा रखा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो डायनेमिक है ना, हमारा लक है, अच्छा जॉइंट डायरेक्टर हमारा गाँव का है, चल रहे काम तो हमारा भाग्य है। अभी शर्मुद्दीन साहब आए थे, अभी उनका भाषण भी दे सुनाए, उनको भी आई एम ग्रेटफुल टू हिम सर। जनाब डॉक्टर आलम रहेंगी साहब, उनको भी मेरा सलाम। भाइयों बहन,
इससे पहले दो भाषण क्या करें आपको एक बोलने का हमारा इच्छा चाहता है। लास्ट 30 इयर्स शादियाँ कर रहे हैं मैं Hindus का साथ minorities Muslims भी। Last time we every year we are celebrating and every year 16th May only I am the only person in India every year marriages, free marriages every year, irrespective of caste community। मुसलमान भाई लोग बहन लोग की शादी हो रही है, 1 लाख रुपए हर एक शादी से 1 लाख रुपए रीजन क्लास में पूरी जाए। अभी तो गवर्नमेंट हेल्प हो रहा है, पहले गवर्नमेंट का हेल्प नहीं थे। हम क्या कर रहे हैं वो बहुत बड़ा था हम लोग। आपके सामने आप देख रहे हैं शादी का नाम 1 crore 20 lakhs वो टाइम में अभी तक रोचे साथ ये नाल रेट कर रहा 10-12 साल हो गए। वो टाइम में 1 crore 20 लाख हमको शादी करना खुद का पैसा से शादी करना जरिए का सामने शादी करना बनाया। अब जूनियर कॉलेज I was as a minister I approved that one and you can see the glory. Urdu University I have taken a fighting at Rajasthan University, Urdu University. We have taken Rajasthan right forum में last 20 years, 23 years we were fighting and we have achieved also some of the things in that achievement. Urdu University also Urdu. You can see that Urdu Bhavan 40 years back constructed. एक margin money there तो government construction करने को ready था। The small money that time margin money I paid and seen the story. You can see the any development whether minorities or any community, my threat is there. Urdu school number of elementary schools शादी करना हुआ है, ताम्रपाड़ विलेज में भी शादी करना पूरा हो रहा है। उसका पैसा सेव अगेन वन मोर उधर उर्दू स्कूल भी बनाया ताम्रपाड़ विलेज में। Why I am saying all this thing? We may be different religion, but we are all living in one place, and we are all believing this country constitution, and this country constitution might not do special rights there. We have the special rights. They are major community. तो हमारा कुछ शॉर्ट है एमपी राज्यसभा मेंबर शॉर्ट है हमारा बिल्स इम्पोर्टेंट बिल्स पास करने गए जीएसटी वो सब भी पास करने गए सीनियर लीडर्स इन दी दिल्ली दे जस्ट ऑर्डर शुड बी इन दी बीजेपी पार्टी नॉट तेलुगुदेशम पार्टी वी हैव टू पास द रेजोल्यूशन तेलुगुदेशम से जरा हमारे को डिफरेंस ओपिनियन आ गया करना बोले। मैं बोला हमारा कर्नूल में पूरा माइनॉरिटी लोग आए, आप बीजेपी में आए तो मेरे कौन वोट डालेगा बोला। Then they said that we are not communal, minorities को constitution से राइट्स आए, मेजॉरिटी कमिटमेंट किधर राइट्स प्रॉब्लम है वो करते, आप आ जाओ सबको ठीक करेगा बोले, सबको भलाई करेंगे बोले। I have taken an order and I have gone there, but not that I am separated from you. My heart and everything is with you, go to meeting. Some of the times, as well as it depends upon the situation, we have to go there. And उधर से भी हम बहुत काम कर रहे हैं माइनॉरिटीज का वास्ते and major as parliament committee chairman कश्मीर का बहुत प्यार दिया कश्मीर में एज ए पार्लियामेंट सब वो भी हमारे से मिला नहीं ऐसा पार्लियामेंट कमिटी चेयरमैन हमारे से मिला नहीं इतना बटन दिया उनके लोग का रिप्रेजेंटेशन एंड दे आर वेरी हैप्पी ऑल्सो दैट टाइम ऐसा बहुत माइनॉरिटी साथ चला है माइनॉरिटी का भलाई का वास्ते है
this is a religion. Religion is a constitution also. पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे, हिंदूज में, मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, hundreds of years back no constitution. पब्लिक क्या तो गलत काम करे तो दिल को जाएगा, अल्लाह छोड़ते नहीं, भगवान छोड़ते नहीं बोल को कॉन्स्टिट्यूशन से, इस कॉन्स्टिट्यूशन अभी एक्ट करते, पनिशमेंट देते, वो करते रहते, मगर वो दिल को जाते बोल को अच्छा काम करे तो जमन जाएगा, खराब करे तो दिल को जाएगा। अरे एक रिलीजन में एक है, तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो एवरीबॉडी शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन। रिलीजन में क्या बोलता, अच्छा काम करो बोलते, तो वी हैव टू रेस्पेक्ट द एवरीबॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसका रिलीजन। अभी उर्दू एक है, वो उर्दू आपको इंडियन में इंडियन लैंग्वेज हो गया उर्दू। अरेबिक लैंग्वेज इज बॉर्न इन अरब कंट्री, पर एक संस्कृत इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक संस्कृत लैंग्वेज इंडिया में आया। अभी कौन फॉलो करते, संस्कृत कौन भी फॉलो करता नहीं, पर संस्कृत जर्मन में पढ़ते बहुत जने। हर एक रिलीजन में वो टाइम में एनी डेवलपमेंट वो लैंग्वेज में थे। वो टाइम में कॉम्पिटिशन मेडिकल कंदे, साइंस कंदे, टेक्नोलॉजी कंदे, मैथमेटिक्स कंदे, वो टाइम में वो लैंग्वेज में थे। तो संस्कृत पूरा बोल गया, जर्मनी में संस्कृत पढ़ को लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ वेदर वेपन समझो, मेडिकल समझो, बहुत डेवलप कर रहा है जर्मनी। लाइक अरबिक ऑल्सो, इट हैज बीन बॉर्न थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक, एंड वो टाइम में वो कल्चर में वो टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूवमेंट हो सके, वो लैंग्वेज में रहेगा। दूसरा लैंग्वेज में उतना कितना ट्रांसलेट करे तो भी फर्क पड़ता है। सो अरबिक एवरीवेयर, अरबिक ऑल्सो हैव टू डेवलप। अभी हमारे दोस्त बोलते थे फिर टाइम ओनर हैदराबाद में अरेबिक डिपार्टमेंट हैदराबाद चल गया। इधर भी हमारे स्टेट में स्पेशली कर्नूल मैक्सिमम नंबर है अरेबिक तो सेंटर बोलो, अरेबिक तो इंस्टीट्यूट बोलो, वो हमारा आंध्र में लाना मौका मिला तो कर्नूल में लाना, कर्नूल को लाना। मेरा बेटा इधर पढ़ा है यूनिवर्सिटी में, अभी मिनिस्टर हो गया। मेरा बेटी इधर ही पढ़ा है, ये कॉलेज में उस्मानिया, उन्हें यूनिवर्सिटी हो गया बेंगलुरु में। तो मैं बोला क्या है, बोला तो तभी बिल्कुल जिस है बिल्कुल एक ही हवा थे, समझे नहीं बिल्कुल करेंगे। अरेबिक इंस्टीट्यूट भी लाने को वो हज उसमें मैं 5 करोड़ दिलाया। वो स्टेट डिवीजन करने के टाइम में वो कर्नूल में उठा डाला, वो पैसा भी गया। तो so many things we want to do it here. Sometimes speed breakers हमारे नाम आता, हमारे को रेस्पेक्ट करता, बोल को स्पीड ब्रेकर्स। तो सबको बोलने के सब अरेबिक also is a lot of knowledge you can get. वो अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे तो वो knowledge will not become. वो पढ़ा तो just like Sanskrit in India, where other countries they are learning, they are researching, they are doing, they are benefiting from that one. Like Arabic also, so many medicines also they have been developed in Arabic language, only can understand and they can do for service. Like so many good things can be learned, so many एक कल्चर का कभी भी अच्छा काम करो बोल को लगता है, वो कल्चर let us respect, let us follow. So today I am grateful, वीर टेम्पल आपसे मिला है, हमारा देखा ये मौका दिया है, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।
मैं जॉइंट कलेक्टर नूरुल मेंबर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आपसे खिताब करेंगे। जॉइंट कलेक्टर साहब यूथ है, आइए सर। वालेकुम सलाम। अरबिक लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है, बहुत ही मीठी जबान है, और ये जबान हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की फर्स्ट लैंग्वेज। अगर आप सबको पता है कि कुरान की सबसे फर्स्ट जो लफ्ज नाज़िल हुई, इकरा, पढ़ो, ये उसी का नतीजा था कि 700 AD से अराउंड 1000 AD, 1100 AD, 1200 AD तक जो ये मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो हर इल्म के हर फील्ड में, वो चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सोशल साइंसेस हो, नई नई खोज हो, नई नई इन्वेंशंस हो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1250 AD तक मुस्लिम कम्युनिटी का न्यू टेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ा योगदान था। अगर आप देखेंगे तो 30% 40% ऑफ द इन्वेंशन बाय 1250 1300 तक मुस्लिम कम्युनिटी का 30%, 35%, 50% तक योगदान था। उसके बाद से ये कम्युनिटी अपना रास्ता या तो भूल गया या तो भटक गया। फिर से सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप नमाज में, हर नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह में एक दिन सिरातल मुस्तकीम, आप खुद अल्लाह से सही रास्ता के लिए दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, लेकिन वही कम्युनिटी जो कि हर नमाज में सही रास्ता का दुआ करता है, अल्लाह से गुजारिश करता है, वही कौम लास्ट 700-800 साल में सही रास्ता से भटक कर, और आप सबको अभी पता है कि वो एक 1200 ईस्वी में इल्म के एरिया में कहाँ पे योगदान था और आज कहाँ पे। ये सिर्फ इंडिया की बात ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें लास्ट 25 साल 50 साल में आपको मुस्लिम इंस्टीट्यूशन से बहुत ही कम न्यू इन्वेंशंस आए हैं, न्यू खोज आए हैं। अगर यही मैंने जैसे कि बताया कि अगर 1200 तक के आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा योगदान था। उसके बाद से अब लास्ट 25 साल 30 साल में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि जितना हम पॉजिटिव ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी ओवरऑल ह्यूमैनिटी जितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा कहीं ना कहीं, चाहे वो परसेप्शन हो, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते में भटक रहे हैं। आपको आए दिन ऐसे न्यूज़ सुनने को मिलते हैं कि हमारे
कम्युनिटी के बाकी कुछ लोग ह्यूमैनिटी को मदद करने की बजाय गलत रास्ता पकड़ करके मुस्लिम कम्युनिटी का भी नाम खराब कर रहे हैं और फिर ओवरऑल जो इमेज है मुस्लिम कम्युनिटी का उसमें भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। आज अगर आप इंडिया में देखेंगे तो जितने भी बड़ी बड़ी अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है। 2%, 3%, 4%, 5% में आपको मिलेगा। जबकि अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी का अगर आप पॉपुलेशन में देखेंगे तो 18%, 15 to 18% to 20% में अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। लेकिन वही जितना अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते देखते जाएंगे उतनी रिप्रेजेंटेशन कम होते जाएगा। प्राइमरी लेवल में ऑलमोस्ट इक्वल 15%, 20% रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद जैसे ही आप लेवल ऊपर होते जाएंगे, प्राइमरी स्कूल में आपको 18% रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, हाई स्कूल में और वो करके 15%। उसके बाद ग्रेजुएशन में अगर आप नॉर्मल कॉलेज लेंगे, टॉप 100 कॉलेज लेंगे, उसमें और 10 मिलेगा। उसके बाद फिर अगर आप टॉप 10 कॉलेज लेंगे वहाँ पे और कम मिलेगा। ये लास्ट जो 707 में जो हमारा इल्म से जो हमारा ध्यान हटा उसी का नतीजा है। और ये जो माइंडसेट है कि सिर्फ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है या नहीं तो सिर्फ जो पावरफुल कम्युनिटी है वही हर जगह कब्जा किए हुए हैं, ये जो माइंडसेट है सबसे बड़ा नुकसान ये माइंडसेट आपको और ऐसे जो भी पिछले लोग हैं उसको पहुंचा रहा है। मैंने 10 क्लास तक अपने नेटिव में पढ़ाई की, उसके बाद 11th 12th मैंने जामिया में की, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसके बाद आपने नाम सुना होगा, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कॉमर्स एंड बिजनेस, वहाँ पढ़ाई की। मुझे उसके बाद मैंने मुंबई में इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल में एक्सिस बैंक में 4 साल काम किया। मुझे ये पूरी जर्नी में कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे खिलाफ या मेरे नाम को देख करके या मेरे कम्युनिटी को देख करके मुझे कुछ छोटा सा भी कोई हार्ट करने की कोशिश कर रहा है या इग्नोर या कम वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे अभी तक नहीं फील हुआ। और ये सच है कि इंडिया का आप सबको पता है 1947 में आज़ादी के बाद हर तरह की इक्वलिटी आई, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सबको एक वोट है, सबकी वोट की सेम वैल्यू, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सबको हर जॉब करने की फ्रीडम है, हर बिजनेस करने की फ्रीडम है। वैसे ही सोशल इक्वलिटी, हर इंसान सोशल लाइफ में इक्वल है। जितने भी पब्लिक एमिनिटीज हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, हर इंसान चाहे वो कोई कास्ट, क्रीड, कोई रिलीजन का हो, सबको सेम इक्वल राइट्स हैं। और वो सिर्फ पेपर्स में नहीं है, इन्फोर्स होते हैं। वो राइट किसी एक सिटीजन का वो राइट अगर नहीं मिलता है, Constitution provides directly approaching Supreme Court and those rights are being enforced very strictly by Supreme Court. इतनी
स्ट्रॉन्ग लॉज, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप के बावजूद अगर किसी कम्युनिटी, किसी कास्ट को अगर ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम हमारे कम्युनिटी के खिलाफ या हमारे कौम के खिलाफ, हमारे कास्ट के खिलाफ काम कर रही है, तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। और ये तो सिस्टम की बात थी, और फिर आया ये टेक्नोलॉजी। ये बात सच है कि सिस्टम अगर डिस्क्रिमिनेट नहीं करे भी, तो अगर सही एजुकेशन के लिए जो सही आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिले, तो फिर आप डिसएडवांटेज में हो सकते हैं। लेकिन लास्ट 20 साल में टेक्नोलॉजी ने उस डिसएडवांटेज को भी खत्म कर दिया है। अगर आप कोई भी रिजल्ट देखें, लास्ट 5 साल में अगर आप कोई भी रिजल्ट देखें, चाहे कोई आप मेडिकल फील्ड का रिजल्ट देख लें, आप कोई साइंस फील्ड का रिजल्ट देख लें, आप इंजीनियरिंग फील्ड का रिजल्ट देख लें, कोई टॉप गवर्नमेंट एग्जाम का रिजल्ट देख लें, आपको उसमें छोटे छोटे कस्बे से भी बच्चे का नाम आपको उसमें मिलेगा। ये बात सच है कि 20 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब के बच्चे ही अच्छे कर पाते थे, क्योंकि उसको उस क्वालिटी का एजुकेशन, उस क्वालिटी का प्रिपरेशन, उस क्वालिटी का मटेरियल मिल पाता था, उस क्वालिटी का स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता था। लेकिन लास्ट 20 ईयर्स में, खास करके लास्ट 10 ईयर्स में, जब से स्मार्टफोन घर घर में पहुंचा, तब से ये जो डिसएडवांटेज था, स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज जो है, ऑलरेडी 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद सब इक्वल हो गए। ये जो अप्रोच और प्लेटफॉर्म का जो डिसएडवांटेज था, ये भी लास्ट 10 साल में स्मार्टफोन घर घर तक पहुंचने से वो भी डिसएडवांटेज खत्म हो गए। मैं अपने बैच में 180 में, मैं IAS 2020 बैच में हूँ, 180 में लगभग 60 बच्चे, 60-65 बच्चे, कभी कोई कोचिंग नहीं किया। आई एम वन ऑफ देम। मैंने कभी कोई फिजिकल कोचिंग नहीं ली, चाहे ग्रेजुएशन के लिए, चाहे प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग नहीं। आई ओनली डिपेंडेड ऑन ऑनलाइन सोर्सेज, ऑनलाइन फ्री सोर्सेज, फ्रीली अवेलेबल मटेरियल। ये सिर्फ क्योंकि मैं अपने प्रिपरेशन किया हूँ, मुझे इसकी पूरी नॉलेज है, लेकिन ये सेम चीज़ हर फील्ड में अप्लाई होती है। आपको जो एग्ज़ाम के लिए, जो कोर्स के लिए, जो बिजनेस के लिए, जो इन्वेंशन के लिए आपको जो स्टडी मटेरियल चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, सारा फ्रीली अवेलेबल है। बस ज़रूरत है आपके अंदर की वो पैशन की, आपके अंदर की वो जो हार्ट में फायर होता है उसकी, और डेडिकेशन की, डिसिप्लिन। अगर आप डेडिकेटेड हैं कोई गोल के लिए, कोई एक आपका एम है, तो उसके लिए डेडिकेटेड है, इस दुनिया की कोई ताकत आपको उस गोल तक पहुंचाने के लिए नहीं रोक सकती। ये जो न्यू इन्वेंशंस आए हैं, ये सब हैंड में, पावर इज इन एवरी हैंड नाउ। आपके पास एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, आप कितना भी दूर वाले गांव में बैठकर ऑक्सफोर्ड के लेक्चर्स देख सकते हैं, IITs के लेक्चर देख सकते हैं, एम्स के लेक्चर देख सकते हैं, आप नासा के रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, नासा में जो अभी न्यू जो इन्वेंशन हो रहा है वो देख सकते हैं। और माशाल्लाह आप सबको पता है कि आज अब तो वो सर्च करने की भी
ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे टूल्स आ गए, ChatGPT, आपको व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं, अब तो आपको वेब में खोजने की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द टूल्स है, अगर आप उसमें सर्च करके देखेंगे, आप अपनी पूरा प्रॉब्लम लिखिए। मैं पीजी फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी हिस्ट्री का एग्जाम देना चाहता हूँ, इसके लिए बेस्ट मटेरियल मुझे बता दीजिए। इतनी अच्छी रिस्पॉन्स आती है उससे। आपको जो जो फ्री सोर्सेस अवेलेबल है, जो जो रेफरेंस बुक आपके पढ़ने की ज़रूरत है, और जो जो एग्ज़ाम में आपको ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत है, सब विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। 5 साल पहले तो आपको, जैसे मैं जब प्रिपरेशन किया था, सारा चीज़ एक एक करके मुझे वेब में सर्च करना पड़ता था। ओके, मुझे ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, इसका स्टडी मटेरियल चाहिए, तो पॉलिटिकल साइंस स्टडी मटेरियल सर्च करने से 5-6 लिस्ट आता था, उसमें से एक एक जा करके कौन मेरे लिए सुटेबल है वो देखता था। उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद फिर मुझे मॉक टेस्ट देना है, वो कैसे देना है, एक एक करके मुझे खोजना पड़ता था, और एक एक करने के लिए 10 बार खोजना पड़ता था, तब सुटेबल मटेरियल तक पहुँचता था। लेकिन बस 5 साल और देखिए टेक्नोलॉजी ऐसे जगह पर आ गया कि वो भी करने की अब ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सर्च कीजिए, आपके खिदमत में सारी इंफॉर्मेशन, सारे टूल्स, सारे रिसोर्सेज हाजिर हैं। बिहार, वहाँ पे यहाँ के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा कम्युनिटी फीलिंग्स है माशाल्लाह। यहाँ पे वैसे ही पूरा साउथ इंडिया में वैसे नहीं है, और कर्नूल में तो माशाल्लाह उससे भी बेहतर है। यहाँ पे कोई गांव में जाने के बाद वहाँ पे मुझे दिखता है कि मस्जिद बनी, मंदिर बनी, चर्च बनी, कम्युनिटी सेंटर कर करके वहीं पे मंदिर, वहीं पे मस्जिद, वहीं पे चर्च है। माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और मैं आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों को चाहे आपको ऑफिसर को हेल्प चाहिए, कोई पर्सनल हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज बी। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस जो है स्टूडेंट्स को शेयर करें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि सर कर्नूल के उर्दू मीडियम की हालात बहुत खराब है सर। यहाँ पे गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज जो है टीजी वेंकटेश साहब लाए, लेकिन यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर्स पूरे गेस्ट लेक्चरर्स में काम कर रहे हैं सर। और यहीं का इंस्टीट्यूशन का एक ये है उमर अरबिक हाई स्कूल सर, जो इससे पहले 8 थी, कुछ वजूहात से जो है वो 8 चले गई। प्रीवियस जो मैनेजमेंट की तरफ से जो है, उनके नेग्लिजेंसी की तरफ से जो है 8 चले गई। आज बच्चे जो है बहुत खस्ता हालत में है, टेक्स्ट बुक जो है खरीद के पढ़ रहे सर, लेकिन मैनेजमेंट थोड़ा बहुत चेंज हो गया, उन लोगों को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। और उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज की जो हालत है सर, टेक्स्ट बुक्स जेरॉक्स फोटोस्टैट कॉपीज लेकर जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं सर। हालत बहुत ख़राब है सर। जैसे कि अब उर्दू यूनिवर्सिटी तो है हमारे पास, लेकिन वहाँ पे भी जो है सहूलियत नहीं है। और अरबिक खुसूसन हमारे अरबिक के लिए जो है, जब कंबाइंड आंध्र प्रदेश था तो अरबिक डिपार्टमेंट हमारे पास था, उसमें अभी जो है आंध्र प्रदेश बाइफर्केशन हो जाने के बाद जो है हमारे पास अरबिक डिपार्टमेंट नहीं है। और इतनी हमारे को दिक्कतें पैदा हो रही सर कि इवन तो बास टाइम जो है पब्लिक एग्जाम्स में अरबिक का पेपर आने में भी लेट हुआ है, और बास जगह नहीं आया सर। हम किसको बोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो है लीडर्स है करने के लिए, लेकिन ऑफिशियल्स के अंदर वो मादा नहीं है जो रिस्क लेके करे। मैं आपको बताते चलूँ और एक प्रॉब्लम, मेडिकल कॉलेज जो है शाशा मेडिकल, वो कर्नूल मेडिकल कॉलेज किसको मालूम है सबको, शाशा मस्जिद बोल है सबको मालूम, जो रिसेंटली जो है रोड वाइडनिंग के टाइम पे जॉइंट कलेक्टर साहब जो है पूरा जो है मस्जिद को बहुत अच्छा दिलाया, हमारे मिनिस्टर साहब से मिलकर जो है, वरना जो है मस्जिद को जो है 1 पैसा भी नहीं आता था। वैसा जो है 2 करोड़ 80 लाख जो है TDR दिलाए, और 27 लाख तो कल को आप भी जो है, जैसे कि साहब बोले, हमारे पास बात किया तो जो है हमारे पास 10th क्लास में जो है ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं,
क्योंकि हमारी माशी हालत हमारे घर में जो है कमाने की जो है बहुत प्रॉब्लम कर है। आप लोग इसके अंदर POMS डॉक्टर्स यहाँ तक आए बोले तो बहुत सारी कुर्बानियाँ आपकी और आपके माँ बाप की है। इंटरमीडिएट तक अगर आप आए तो आपके माँ बाप की कुर्बानियाँ और आपकी कुर्बानियाँ हैं। और वाकईत में जो है हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत वीक है, क्योंकि हमारे को सिखाया जाता है कि जो है पहले पैसे कमाओ। जॉइंट कलेक्टर साहब के बोलने के हिसाब से अगर हम लोग पढ़ लिए कॉन्स्टिट्यूशनल के राइट्स अगर हम लोग ले लिए तो उनको हमारे को हक बनता है कि यहाँ स्टेज पर ठहर कर जो है आपको सबको मुखातिब करें। मैं इसी सिलसिले में आपका जो है आज IAS और IPS जो हाफिज़ कुरान डिग्री पढ़े हैं और जो डिग्री स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो POMS भी जो पढ़ रहे हैं, वो IAS IPS कैसे बने उसके आपको जो है टिप्स जो है हमारे कर्नाटका गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेटर है और रिटायर्ड IAS ऑफिसर सैयद एजाज अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो है IAS IPS को ट्रेनिंग कैसे करें, जरा आप किताब करें। सैयद एजाज अहमद साहब। सर जॉइंट कलेक्टर साहब से मेरी बेइंतहा अदब एहतराम के साथ रिक्वेस्ट है, आप बहुत अच्छी बातें बोले कि भाई पूरी सहूलतें दी आपको, फ़ायदा उठाओ। सर ये 100 साल पहले ही बहुत वाकई वो सहूलतें यहाँ दी गई, यानी 1922-23 में जब गवर्नमेंट हमारी भी देखिए इंडिया की आज़ादी भी नहीं थी, उस वक्त ही डॉक्टर अब्दुल हक साहब यहाँ पर इसी कैंपस में इस्लामिया अरबिक डिग्री कॉलेज एफिलिएटेड टू मद्रास यूनिवर्सिटी, उसमें 12 टीचिंग पोस्ट, 5 नॉन टीचिंग पोस्ट। 1953 में उमर अरबिक हाई स्कूल, उसमें 25 टीचिंग पोस्ट, 15 नॉन टीचिंग पोस्ट, पूरे 40 पोस्ट। तो लास्ट गवर्नमेंट में हमको कुछ बोलना नहीं है, लास्ट गवर्नमेंट ने उसको ऑब्जर्व कर लिया एडेड को। तो हमारे जो मौजूदा एजुकेशन मिनिस्टर है मोहतरम लोकेश साहब, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज किया, तुम कैसा लेते एडेड कोर्स वापस दो। तो फिर जब डर कर जो है कोई वापस लेना चाहे तो ले लो, सिंपल बोले। तो हमारे पास वाले जब ये 2 इंस्टीट्यूशन उमर अरबिक हाई स्कूल जहाँ 40 पोस्ट गवर्नमेंट के थे, इस्लामिया अरबिक कॉलेज जहाँ 17 पोस्ट गवर्नमेंट के थे, अब प्योरली प्राइवेट हो गए सर। जब तक गवर्नमेंट के थे, गवर्नमेंट पूरे जो है टेक्स्ट बुक देती थी, दोपहर का मिड डे मील देती थी और पूरी सहूलतें थी, पूरे स्कॉलरशिप आते थे। आपसे बेइंतहा अदबन रिक्वेस्ट है कि 2 इंस्टीट्यूट को उमर अरबिक हाई स्कूल, इस्लामिया अरबिक डिग्री कॉलेज को ग्रांटी रेट दिला दिए तो कोई मुश्किल नहीं है। लोकेश साहब के पास हमारे लोग सही जाके नहीं बोल रही, अगर आप एक लेटर में दिए तो ये हो जाता। नंबर 3 डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज, यानी पूरे स्टेट में यूनानी मेडिकल कॉलेज ओनली 1 है, तो वहाँ भी तकरीबन 20 प्रोफेसर पोस्ट थे, सब रिटायर्ड होते चले जा रहे हैं। मुश्किल से अब 3 या 4 पोस्ट हैं, तो बड़ी मुश्किल उनके एजुकेशन की हो रही है। पूरे स्टेट में एक ही यूनानी मेडिकल कॉलेज है हमारे स्टेट में, और बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं सर, वो पोस्ट भी फिलअप करने के लिए। और MD नहीं है सर, हमारे आंध्र प्रदेश में MD यूनानी नहीं, जबकि तेलंगाना में MD यूनानी की पूरी गवर्नमेंट की भी सहूलत है, प्राइवेट में भी सहूलत है। तो MD भी अगर हमारे यूनानी मेडिकल कॉलेज में आ जाए तो हमारे जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं साथ में, उनके दिल की बात मैं आपको बोलूँ क्यों नहीं बोलूँ, यूनानी मेडिकल कॉलेज को क्या स्पेशल गारंटी रेट दे सकते हैं, कैसे पोस्ट फिलअप हो सकते हैं, कैसे वो डॉक्टर्स को यहीं रहकर, अब जब तक 10 साल तक सहूलत थी सर, तेलंगाना में हमारे बच्चे जाकर MD करते थे, वो 10 ईयर्स कम्प्लीट हो गए सर, सर्टिफिकेट होगा। अब हमारे बच्चों को वहाँ MD में सीट भी नहीं मिली सर, तो हमारे बच्चे किधर के भी नहीं हो रही सर। तो हमारी गवर्नमेंट में भी अगर MD यूनानी में अगर यहीं दे दिए तो ये 3 चीज़ें सर, इस्लामिया अरबिक डिग्री कॉलेज, उमर अरबिक हाई स्कूल, डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज, ये तीनों कॉलेज ऑलरेडी एडेड है सर। जैसा आप बोले पूरी सहूलतें गवर्नमेंट देगी, हर गवर्नमेंट देगी, किसी गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं, मगर हमारे लोग जो बड़े हैं उसमें ज़रा तवज्जो कम करने की वजह से अब सब खाली हो गए हैं सर। वो पोस्टां दिला दिए तो बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह नज़र से बस से बचाए आपको। मैं पूरी प्योर उर्दू में बोलूँगा, अरबिक प्रोफेसर हूँ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी सहूलत है। जैसा आप बोले, यानी गवर्नमेंट बुलाकर मुझे प्रोफेसरशिप दी, पूरे स्टेट में 2 प्रोफेसर हैं, उसमें सीनियर अरबिक प्रोफेसर मैं हूँ, अभी जो है 1 ईयर के बाद रिटायर्ड होने वाला हूँ। अब जो भी है, पहले की जो सहूलत थी, इस्लामिया अरबिक कॉलेज का ही मैं स्टूडेंट, हैदराबाद में ओरिएंटल मैनेजमेंट लाइब्रेरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्च ऑफिसर, वही मैं DG साहब को बोला तो समझ गए हो, तो वहाँ 52% हमको आना सर नहीं आया, वो आ गया तो उसमें जो है 40 पोस्ट
उर्दू अरबी फारसी का है। ओरिएंटल मैनस्क्रिप्ट लाइब्रेरी का ब्रांच एपी में भी आना है और दायरे मारिफ का ब्रांच एपी में भी आना है। मुख्तार अब्बास नकवी जो मिनिस्टर थे 20 करोड़ दिए था दायरे मारिफ, वो तेलंगाना में ही होकर रह गया, वो आंध्रा में भी आना है। ये दो इंस्टीट्यूट अगर आंध्रा में आ गए, एक कन्नूर में एक गुंटूर में, या दो भी गुंटूर में कहीं भी साथ तो बोले हमें ज़्यादा ही यहाँ होना बिल्कुल, अगर हमारे इंडियन करेंगे तो अच्छा है। हमारी बेरोजगारी भी दूर होती है, अरबिक ज़बान की, उर्दू ज़बान की, फारसी ज़बान की खिदमत की। और वो लाइब्रेरी में पूरे जो है यूनानी के 66,000 मैन्युस्क्रिप्ट है। उस दौर में करोड़ों रुपए देकर खरीद कर लाए, वो हमारी जो है खजाने में, वो खजाने को यहाँ थोड़ा शिफ्ट कर लिए तो किसी भी सूरत में बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर जॉइंट कलेक्टर साहब से मैं एक बार गुजारिश करना चाहूँगा सर, अरबिक के जो है सेमिनार चाहिए और अरबिक लैंग्वेज के लिए जो डेवलप कर रहे हैं वो लोग टीचर्स को जो है सर्टिफिकेट दे रहे सर। एक सर्टिफिकेट आपके हाथ से अगर सोचे मिल कर दे रहे जॉइंट कलेक्टर शेख सोहेल साहब, ये अरबी में आलिम हैं और शेख सोहेल साहब के अंदर अरबी कल्चर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से जितने हजरात अरबी ज़बान पढ़ा रहे हैं, अरबी के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन तमाम के लिए इस प्रोग्राम में तौसीक़ की सनद रखी गई। मौजूद की मुनासिबत से फरमाएं। इंशाअल्लाह हज़रत सैयदुल अमाम कलिमात की लुग़ा अल-अरबिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ल अरबिय्यत व अज़महा व रफ़अ ख़दरहा व कर्रमहा व क़य्यद लहा फ़ी कुल्ली ज़मानिन व मकान व हफ़ज़तन व ख़ज़ानतन मिन ख़वासिन नास व अ'यानिल फ़ज़ल व अंजुमल अर्ज़ من حافظوا على حيوتها وصانوا نظارتها وأفضوا أعمارهم في خدمتها. والصلاة والسلام على محمد النبي العربي الهاشمي القرشي أبلغ وأفصح من نطق بلغة الضاد الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه والذي أعطاه ربه جوامع الكلم ورواعي الحكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الذي خرجنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن اللغة العربية وعاء قرآننا وسيال هويتنا ورمز حضارتنا وعماد ثقافتنا وبحار كلامنا وفخر تراثنا وقد استطاعت بفضل مالها من خصائص البقاء والصمود بل الخلود الذي تستمدها من كونها لغة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب العربية الأكبر وحاملة رسالة الإسلام أن تستوعب كل ما أفرزته الحضارات الأخرى في مجالات الحياة كافة وتصوغها وفق منظور إسلامي خالص نزيه. وهي العربية ذات موقع متميز بين لغات البشر، فهي اللغة السادسة من 160 من اللغات الأم في العالم وفقا لبعض الدراسات التي أجرتها منظمة اليونسكو ونشرت نتائجها
في مختلف وسائل الإعلام العالمية. إن هذه اللغة لغة القرآن الكريم، لغة كتاب الله الأخير، ولغة رسوله النبي البشير النذير، الذي أعطاها الله سبحانه وتعالى سر الحياة وروح الخلود. وروح محمد صلى الله عليه وسلم وسر الحياة. فعلينا أن نحب هذه اللغة، فعلى كل مسلم أن يحب هذه اللغة، يحب الله ورسوله. وكذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. ثم إن القول بالعربية من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بدعا من الأفعال من الأقوال. فلسنا أول القائلين بهذه النظرة التي تعتبر حب اللغة من حب الله ورسوله. فقد قال بعض العباقرة: من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أحب العربية ومن أحب الرسول العربية أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب. ومن أحب العربية عنا بها وثابر عليها وصرف همته إليها، ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان. وكذلك قال أبو الريحان البيروني: لئن أشتم بالعربية خير من أن تمدح بالفارسية. अभी हमारे बीच ये भी उर्दू अकादमी के चेयरमैन मोहम्मद फारूक सुबी का तशरीफ लाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि पेपर तशरीफ लाएं। मैं सुनी मथुरा की क्लास से गुजारिश करता हूँ कि उस पेपर तशरीफ लाएं, और मैं अब्बास भाई से भी गुजारिश करता हूँ कि उस पेपर तशरीफ लाएं। हमारे शेख ऑफिसर साहब जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कमेटी और सेक्रेटरी केपी स्टेट उर्दू अकादमी से गुजारिश करता हूँ इस पेपर तशरीफ लाएं। और इब्राहिम भाई और रजा साहब से गुजारिश करता हूँ इस पेपर तशरीफ लाएं। أيها الأخوات والإخوة، إن هذه اللغة العربية لغة الحكمة والبيان. العربية لغة البيان والحكمة. فقد قيل: إذا أردت أن تخاطب كلبا فخاطبه باللغة الألمانية، وإذا أردت أن تخاطب حصانا فخاطبه باللغة الإنجليزية، وإذا أردت أن تخاطب زوجتك فخاطبه باللغة الفرنسية، وإذا أردت أن تخاطب فيلسوفا أو حكيما فخاطبه باللغة العربية. أننا أدينا مسؤوليتنا نحو هذه اللغة الجليلة، بل نعتبر من العقوق بالنسبة لهذه اللغة، بل يجب علينا أن يكون احتفالنا على مدار أيام السنة. محترم علماء الكرام، السيد رونق अफरोज, अमायदीन, जिम्मेदारान और डॉक्टर बनने वाली तालिबात और आलिमा बनने वाली तालिबात और दीगर कॉलेज के तलबा और दीगर जिम्मेदारान, आज का दिन अरबी ज़बान का दिन है, बड़ा अहम दिन है। 18 दिसंबर 1973 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने सरकारी ज़बान के तौर पर इसे मंजूर किया था। अरबी ज़बान को सरकारी ज़बान के तौर पर मंजूर किया था। फिर उसके बाद से 2012 तक ये दिन मनाया नहीं गया। 2012 में 18 दिसंबर 2012 में पहली मरतबा
आलमी यौम अरबी मनाया गया, उसके बाद से मुसलसल मनाया जा रहा है। ये अरबी ज़बान कुरान की ज़बान है, हदीस की ज़बान है, अहले जन्नत की ज़बान है, अल्लाह की उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है। बात अकाबिर का ये कहना है कि जो मुसलमान है उसके ऊपर जिस तरह कुरान का दीन का सीखना वाजिब है, ऐसे ही अरबी ज़बान का सीखना वाजिब है। बल्कि जिसको अरबी ज़बान न आती है वो मुसलमान ही नहीं। अब हम ताज्जुब करने की जरूरत नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे तो अरबी ज़बान है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे तो अरबी ज़बान है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस की ज़बान को भी समझने वाले और उसके मफाहीम को हम समझने वाले बनना चाहिए। अरबी ज़बान दुनिया की वसीअ तरीन ज़बानों में से। अरबी ज़बान में तकरीबन 6 मिलियन अल्फाज हैं। कितने अल्फाज हैं? 6 मिलियन 60 लाख के करीब अल्फाज हैं। और फ्रांसीसी ज़बान में सिर्फ 25,000 अल्फाज हैं। अंग्रेजी ज़बान में 1 लाख अल्फाज हैं। अंग्रेजी ज़बान के कुल अल्फाज 1 लाख है और अरबी ज़बान में 60 लाख अल्फाज। इतनी वसीअ ज़बान है। अल्लाह रब्बुल ने कुरान मजीद को इसी किताब में नाज़िल फरमाया क्योंकि ये क़यामत तक रहने वाली किताब है, तो ज़बान में बड़ी वसीअ होना चाहिए। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, तो ज़बान भी ऐसी होना चाहिए जिसकी हिफाजत अल्लाह ने, और ये जैसे कि क़ब्र की भी ज़बान है, हश्र की भी ज़बान है, तो इस ज़बान को सीखने का एक शौक़ होना चाहिए। ये कुरान हमारे डीएम मोहतरमा सबीहा परवीन साहब दरखास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अरबी ज़बान को सीखना एक मकसद ये है कि इसको हम कुरान मजीद और अहादीस मुबारका को दीन हनीफ को समझें, और दूसरा इससे बहुत सारे रोजगार भी वाबस्ता हैं। आपको अमेज़ॉन के अंदर भी, रेस्तोरां के अंदर भी, आलमी सतह पर बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल है, मैप्स है, इन तमाम के अंदर भी रोजगार मुहैया है। जो अरबी ज़बान सीखते हैं वो बाहर मुल्कों को जाकर भी वहाँ बहुत अच्छी तरह से उनको मुलाजमतें मिल जाती हैं। इसलिए इस ज़बान को छोड़ना नहीं चाहिए। ये पूरे आलमी ज़बानों में, इंटरनेशनल ज़बानों में 6वें नंबर की ज़बान है, बड़ी अहम ज़बान है। इसलिए हम इस सिलसिले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इस ज़बान का एक नाम है लुग़त ज़ाल। ज़ाल किसी ज़बान में नहीं है, सिर्फ अरबी ज़बान में है। तो ये इस ज़बान की ख़ुसूसियत है। जैसे मस्जिद का मीनारा होता है, ऐसे अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है जो उसकी पहचान है, ज़ाल। ज़ाल का लफ्ज़ किसी और ज़बान में नहीं है। तो बड़ी प्यारी और बड़ी शीरी और बड़ी कीमती ज़बान है। थोड़ी सी मेहनत कर ले तो उस ज़बान को हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप जनाब के सामने बताना चाहता हूँ कि हमारा इदारा है जामिया मोहम्मदिया आयशा इस्लाम। यहाँ तकरीबन हमारे पास जो बैठी हैं बहुत सारे तालिबात हमारे इदारे की आलिमियत और फजीलत हासिल करने वाली हैं, और बड़े मैं खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिस ज़मीन पर हम यहाँ बैठे हैं, ये उस्मानिया कॉलेज की ज़मीन, ये मेरे परदादा अलहाज कंट्रैक्टर उमर साहब की वक्त करना ज़मीन है। इसी तरीके से उमर नबी हाई स्कूल की ज़मीन भी मेरे परदादा मरहूम अलहाज कंट्रैक्टर उमर साहब की ज़मीन है। इन हजरात ने, हमारे खास तौर पर मेरे परदादा मरहूम ने और दीगर हजरात ने मिलकर इस ज़मीन को वक्त किया। तकरीबन मेरे परदादा मरहूम में 10 एकड़ ज़मीन है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ों की उलमा की बात में आकर कौम के लिए, दीनी तालीम के लिए उन्होंने ये ज़मीन वक्त की। उस्मानिया कॉलेज के अंदर अब जब गेट में दाखिल होंगे तख्ती लगी हुई है, उस तख्ती में तीसरे नंबर पर अलहाज कंट्रैक्टर उमर साहब का नाम मौजूद है। अल्लाह रब्बुल ने इन अकाबिर की वजह से आज पूरे शहर को रोशन कर रहे हैं तालीम और ताल्लुक़ के ज़रिए से। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए, और आज के दिन अरबी ज़बान की
मोहब्बत हमारे दिल में पैदा फरमाए और अरबी ज़बान से लगाव और सीखने का शौक़ और जज्बा हम तमाम को अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। प्रोग्राम में तशरीफ लाकर अपने मदारिस से लड़कियों को जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मादरी ज़बान हर किसी की होती है। आज वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे है। हमारे अरबिक डे के प्रॉब्लम्स क्या है वो क्या नहीं मिलेगा जो है कंबाइंड आंध्र प्रदेश पहले तक जो है हमारे पास एक अरबिक डिपार्टमेंट था, जो आंध्र प्रदेश अलग हो जाने के बाद आज हम जो है इससे महरूम हो गए। इस वजह से कि मुतहिदा आंध्र प्रदेश से जो हमारा वो अरबिक डिपार्टमेंट आना था अभी तक नहीं आया। बहुत सारे कोशिशें हुए लेकिन एक सही हमारे एक लीडर और ऑफिसर नहीं मिलने की तरफ से जो है शुक्री साहब मुकदमा में आप सब वहाँ जो है अरबिक डिपार्टमेंट नहीं आ सका। अरबिक डिपार्टमेंट क्या है और लैंग्वेज क्या है और क्या वहाँ रहने से हमारे कितना नुकसान हुआ, अगर इधर आने के बाद क्या पैदा होगा। मैं हमारे डॉक्टर मौलाना मोइन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जो है 5-10 मिनट में जो है तफसील से सुनाएं, क्योंकि IAS की ट्रेनिंग भी हमारी जरूरी है। मोइन साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व क़ाल सय्यिदुना नबीना मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तसुब्बुल अरब फ़इन्नी मिनल अरब, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ बड़े बड़े खुतबों पर वाइज बड़ी शख्सियतों की खिदमत में अदब और इकराम के साथ मेरा सलाम। मैडम सबिया नसीम साहब को आपको बहुत ही अदब के साथ सलाम मसनून पेश करते हुए, आज हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात यह है, मैं फिजिकली आज मुलाकात किया हूँ मौलाना शिबली साहब से। शिब ठीक है, कोई बात नहीं, मगर कोविड के दौर में जो इल्ज़ाम लगा था, मैं टीवी न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मैं अरबिक प्रोफेसर हूँ साहब, खासतौर पर महा टीवी में जो इल्ज़ाम लगा था, जो मुस्तरद किया, उसने मानकर माफ़ी मांगी आपसे। आप लोगों की तरफ से कोविड में लगा है, मौलाना ने चैलेंज किया, बताइए कोई एक फर्द है जिसकी वजह से आप अरेस्ट कर करके जेलों में डाल दें। कोई कोविड लगाया, उल्टा कोविड लगे तो वालों को खून देकर उनको जो है हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं। पूरे प्रूफ बताए टीवी सीरियल के टीवी के जो बड़े बड़े लोग थे। तो ऐसे बड़े भाई हमारे, बड़े भाई नहीं हुआ जो कुछ छोटे ही रहे मेरे से, मुझे बड़ी खुशी है। दिल की गहराइयों से मैं दम करते हुए चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आज अरबिक डे है, ये इलाके में आप तशरीफ लाए हैं, जैसा बोले अभी 12 एकड़ में है। 3 इदारे इसमें हैं। नंबर 1 इस्लामिया अरबिक डिग्री कॉलेज, ये मदरसा इस्लामिया था, 1888 में कायम हुआ। शमसुल उलमा उमर साहब ने इसको कायम किया। शमसुल उलमा उमर साहब उसको 1922 जून में एफिलिएट करे मद्रास यूनिवर्सिटी से, और उसमें 12 पोस्ट टीचिंग के, 5 पोस्ट नॉन टीचिंग के अंग्रेज गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया। उस दौर में 22-23 से ही कन्नूर में फर्स्ट कॉलेज इस्लामिया अरबिक डिग्री कॉलेज। 1953 में उमर अरबिक हाई स्कूल, अरबिक डे है इस बात से बोलो, यानी अरबिक की खिदमत 1922-23 से 2020-21 तक गवर्नमेंट चलाई है। यही कहा है 100 साल तकरीबन, यानी तकरीबन 99 ईयर समझिए। अब गवर्नमेंट के फैसले थे और क्या कर सकते हैं, अब्जॉर्व करिए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के साहिबजादे दे नाना मुकेश साहब, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, जबरदस्त एहतजाज करे। ऐसा इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन खत्म करते तो वापस लो, खासतौर पे अनंतपुर में गवर्नमेंट करके बोले लेने भाई, आगे में ऑब्जर्व कर लिए थे, अगर आप वापस लेना है तो ले लो। मगर यहाँ से सही कम्युनिकेशन न होने की वजह से इस्लामिया अरबिक डिग्री कॉलेज जो 17 गवर्नमेंट पोस्टों के साथ चल रहा था, उसी का एक पोस्ट मैं भी हो सकता, एंड प्रोफेसर ऑफ अरबिक
नो आई एम वर्किंग इन KVR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कन्नूर इन अरबिक प्रोफेसर। पूरे स्टेट में सीनियर प्रोफेसर अरबिक मैं ही हूँ सर। अभी मेरी 7 साल सर्विस है, 27 अप्रैल में रिटायर हो जाऊँ। और 3 लोग हुई मेरे जो कोई मुंतकल में एक है KVR नॉलेज साथी। तो हमारे लोग वापस नहीं लेने की वजह से सिंपल बोले वापस लेना है तो ले लो, ये लोग जो है नहीं देते शायद लोग नहीं। अरबिक हाई स्कूल में 25 टीचिंग पोस्ट, 15 नॉन टीचिंग पोस्ट, पार्टी गवर्नमेंट तनख्वाह देकर चला रही है। इस तरह से पूरे गरीब महले दोपहर का खाना फ्री, पूरे गवर्नमेंट के पैसे फ्री, जूते फ्री, किताब सब फ्री थे। 21 से सब फ्री में खत्म हो गया, प्राइवेट हो गया। 2 इंस्टीट्यूशन इस्लामिया डिग्री कॉलेज और अरबिक हाई स्कूल, ये 3 साल की संबंधी अदर करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे को बुला कर लाए प्राइवेट वालों के कैसे कॉलेज हो तो गवर्नमेंट पॉलिसी है प्राइवेट लोगों को देना नहीं, खाली हमारे को देना है। और जितनी मुश्किल होगी है साथ किताब अरे यहाँ पर पहले तो फ्री देते थे, अब टाइम फ्री देते नहीं। इस बात से जो है बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ के गरीब बच्चे जो वीडियो बनाने वालों के बच्चे नहीं, तालीम से दूर हो गए। ये 2 इंस्टीट्यूशन को जिंदा करना है तो एडेड में लाने की कोशिश आप करेंगे तो तारीख आपको याद रहे। अल्लामा शिबली को हम याद करते हैं। ये शिबली शेर का बच्चा है। शिबली किसे कहते हैं? मालूम? शेर का बच्चा बारो। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम वालिदैन ने रखा है। आप किस मुसलमान बनेंगे, बाद में डायरेक्टर साहब हैं, आप किन किन को बोलते हैं, आप कैसे मनासिब हैं, कोई नए कोर्स जो ये बोले जो कोर्स हमारे पहले थे वही दिलाइए। अरबी कॉलेज के 17 कोर्स दिलाइए, अरबी स्कूल के 40 कोर्स दिलाइए जो अन्य बनकर वीरान बन गए हैं। सर नंबर 3 एक रिक्वेस्ट है सर, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नंबर 3 अरबिक डे है आज। डॉक्टर अब्दुल्ला यूनानी मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब अरबिक स्कॉलर, फर्स्ट डिलीट लंदन से। पहले उनका इरादा था एक पूरा दारुल देवबंद की तरह एक दीनी इदारा बनाना, वहाँ गए डिलीट करें। अरे खाली अरबी पढ़े तो फायदा नहीं, हमारे पास दारुल देवबंद भी है, नदवा भी है। ये उस्मानिया कॉलेज के नाम से कायम करना उस्मानी बादशाह है, वहाँ गए, पहले 1 लाख रुपए दिए उन्होंने। सर आपका ही नाम रखो, दूसरा बोला दिए उस्मानिया कॉलेज का नहीं, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब। तो ये भी एडेड है, ये एक वापर दिए सजा है। तो उनके नाम पर यूनानी मेडिकल कॉलेज 1953 में बनी। उसमें इस्लामिया अरबी और तिब्बी कॉलेज में बच्चा था सर, बच्चे का 2 मिलकर थे सर, जिनमें हम लोग अरबी फारसी उर्दू पढ़ते थे, बाद में अरबी पढ़ते थे, तभी ये कामिल हो गया था। बाद में उसको यूनानी मेडिकल कॉलेज के नाम से अब्दुल्ला यूनानी मेडिकल कॉलेज वहाँ भारत के पास है। आप देखें तो आपको रहम आ जाएगा, बहुत बुरा हाल है वहाँ में। वहाँ भी तकरीबन 20-25 प्रोफेसर के साथ रिटायर्ड होते गए। हमारे लोगों की सुस्ती है जो पूरी तरीके से आप लोगों को तवज्जो नहीं दिला सके। मैं चूँकि बाहर गवर्नमेंट में आ गया हूँ, खुलकर बोल रहा हूँ, दर्द में सह नहीं सकता हूँ। तो यूनानी मेडिकल कॉलेज भी बहुत बुरा हाल है सर। तो जो कोर्स पहले से सैंक्शन है वो कोर्सों का अलग बजट नाम में अलाटे होता था, अलग गवर्नमेंट को बजट नहीं होता था। तो यूनानी मेडिकल कॉलेज के पूरे कोर्स फिलअप होना। नंबर 2 सर, 10 साल तक हमारे बच्चे MD तेलंगाना में जाके करते थे। 10 साल हो जाने की वजह से वो लोग MD में भी हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं देते सर। पूरे स्टेट में एक ही यूनानी मेडिकल कॉलेज है सर, वहाँ उसमें अरबी भी है सब्जेक्ट। तो वो जो है वो कॉलेज को किसी तरीके से जान डालने की कोशिश आप करेंगे, हमारी गुजारिश है। आखिर में सर 2 मिनट के बाद मुकम्मल करता हूँ। 2 इंस्टीट्यूशन है तेलंगाना में सर, एक दायरतुल मारिफ अल उस्मानिया, ये 1888 में कायम करे थे सर अंग्रेजों के दौर में। अभी माशाल्लाह मुख्तार अब्बास नकवी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे 20 करोड़ दिए सर उनके दौर में दायरतुल मारिफ, जो बहुत टॉप बन गया है, पूरा डिजिटलाइज हो गया है। तो 48-52 के तहत दायरतुल मारिफ और 52 इदारा हमारे पास या तो गुंटूर में आना था या तो कदूर में आना था, तो मुझे बड़ा कहीं जाने नहीं आया। पूरा दायरतुल मारिफ तेलंगाना में ही था। मैं वहाँ रिसर्च ऑफिसर था, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ओरिएंटल मैनेजमेंट, उसमें 24,000 मैन्युस्क्रिप्ट रातपत्रुలు కాట్యాపుల మీద మహాభారతం, తర్వాత రామాయణం, విష్ణు మహాపురాణం ఇలా కాట్యాపురం, తర్వాత उर्दू अरबिक पर्शियन, अरबिक में 6,000 मैन्युस्क्रिप्ट, फारसी में 8,000 मैन्युस्क्रिप्ट, उर्दू में 2,000 मैन्युस्क्रिप्ट। उसमें गालिब बड़े शायर हैं, वो लिखे सभी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खत पे अंगूठी
का छाप लगाए थे, वो भी है। यानी बहुत ही नादिर मखलूक आदमी था। पूरे वर्ल्ड में बस तो कुरान मजीद गोल्ड से लिखा हुआ है सर। नंबर 1 ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट है, नंबर 2 सालाना में है, नंबर 3 लेटर जवानी के 3 कुरान के उसमें इंग्लिश में और उसमें कुरान से इसमें गोल्ड से लिखे थे। 5 किलो गोल्ड खाली इसको जलेगा उस वैसा कुरान है। तो खाली वो कुरान गुना नहीं बोल रही, क्या ऐसा आ सकता है 52%? कम से कम उसका जो है जीरक्स या फिर क्या क्या दे सकते हैं गवर्नमेंट को बोल के हमारा हिस्सा हमको दिए तो हमें लोगों में यहाँ तरक्की करनी है। यहाँ भी अरबी के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत सारे अरबी के जैसे गुंदुर में जो है एक बच्चा है जूनियर हिसाब नंदी है, बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा है। आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जो है नागार्जुन यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा अरबी हेल्थ रजिस्ट्रार को कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा काम कर डिप्लोमा के काम में चलता था। हमारे आंध्र प्रदेश में अरबिक डिपार्टमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी में खाली होता है, बस हम आपका शुक्रिया रखते हैं। अरबिक डे है, अरबिक के नामों से चंद बारे में आपके सामने रखा। अल्लाह आपको जज़ाय कर दे, आपकी उम्र दराज करे, सारे भाइयों की उम्र दराज करे जो कौम के मिलत के नाम पर कीमती वक्त देने आए हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अहसन जज़ा, बात